Good morning, student. Most welcome in our online classes. Today, your EVS class. Open your book, page number 26, lesson number 7. Once again, I repeat, open your book, page number 26, lesson number 7, teeth and tongue. So, first of all, I want to tell you about a lesson. What is theme of the lesson? The lesson is fully dedicated our body. ਜੋ ਲੈਸਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਟੀਥ ਐਂਡ ਟੰਗ, ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਾਊਟ ਟੀਥ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸਪੀਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਂਡ ਕਾਂਟ ਈਟ ਬਾਈਟ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਈਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਵਿਦਾਊਟ ਟੰਗ ਵੀ ਕਾਂਟ ਟੇਸਟ ਐਨੀ ਆਈਟਮਸ। ਜੋ ਟੰਗ ਹੈ, ਟੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਈਟਮ ਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਨ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ student, you have received PDF of this chapter, but today we will discuss this chapter about a video. Student, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਲੈਸਨ ਦੀ PDF ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਵਨ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ that you have too much need of EVS book, notebook or PDF file, because without EVS book you can't read lesson properly. Without notebook you can't do back exercise, and without PDF file you can't imagine of the ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਐਡ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। EVS ਬੁੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। EVS ਨੋਟਬੁੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਂਡ PDF ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਕੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਨ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਆ ਲੈਸਨ। Our teeth are very important part of our body. The function of the teeth are as follows. ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਜ਼ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਦੇ ਗਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਟੂ ਆਵਰ ਫੇਸ। ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਹੈਲਪ ਅਸ ਇਨ ਬਾਈਟਿੰਗ ਐਂਡ ਚਿਵਿੰਗ ਫੂਡ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚਬਾਉਣ ਨੂੰ, ਬਾਈਟਿੰਗ ਕੱਟਣਾ, ਚਿਵਿੰਗ ਮੀਨਜ਼ ਕਿ ਚਬਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇ ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਸਪੀਕ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਵਰਡ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਵਿਦਾਊਟ ਟੀਥ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਵਰਡ ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਥ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਥ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਪੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਰੋਕ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਿਦਾਊਟ ਟੀਥ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਚੇਂਜਿੰਗ ਟੀਥ। ਜੋ ਟੀਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਆ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਟੀਥ। ਜੋ ਨਵ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਨ ਦਾ ਬੇਬੀ ਇਜ਼ 6 to 7 month old, ਜਦੋਂ ਬੇਬੀ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਥ ਬਿਗਨ ਟੂ ਅਪੀਅਰ, ਉਸਦੇ ਜੋ ਟੀਥ ਉੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਦੀ ਏਜ ਆਫ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਹੈਜ਼ ਸੈਟ ਆਫ 20 ਟੀਥ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਸ ਸੈਟ ਇਜ਼ ਟੀਥ ਇਜ਼ ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੀਥ। ਇਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਟੀਥ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਵੈਨ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ 6 year old, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਦੀਜ਼ ਮਿਲਕ ਟੀਥ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਦੁੱਧੀ ਦੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੌਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੀਨਜ਼ ਉਹਦੀ ਈਵਲ ਦੰਦ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਐਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਕ ਟੀਥ ਫਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੰਦ ਦੁੱਧੀਆਂ ਦੰਦ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਆ, ਨਿਊ ਟੀਥ ਗਰੋ ਇਨ ਦੇਅਰ ਪਲੇਸ, ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਦਿਸ ਨਿਊ ਸੈਟ ਟੀਥ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਥ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਈ ਦੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚਾਈਲਡ ਇਜ਼ 12 to 13 year old, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 12-13 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟੀਥ ਗਰੋਥ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਹਾਂਜੀ।
all the teeth grown generally there are 28 permanent teeth। ਉਸਦੇ ਜੋ 28 ਦੰਦ ਉਹ 12-13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦ ਲਾਸਟ 4 teeth are known as wisdom teeth। ਜੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਟੀਥ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਕਲਮੰਦ ਦੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। these teeth come out between the ages of 20 and 30। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟੀਥ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਟੀਥ 20 to 30 ਈਅਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਸਨ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ, ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਦੰਦ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਡਮ ਟੀਥ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। Therefore, adults have set of the 32 teeth in 6 in upper jaws and 6 in lower jaw। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅਡਲਟ ਹੈ ਉਹ 32 ਦੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, 16 ਦੰਦ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਐਂਡ 16 ਤੇ ਨੀਚੇ 16 ਦੰਦ ਨੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਅ ਨਿਊ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਅ ਟੂਥ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਵੀ ਓਪਨ ਅਵਰ ਮਾਊਥ ਐਂਡ ਲੁੱਕ ਇਨ ਦ ਮਿਰਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸੀ ਅਵਰ ਟੀਥ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਟੀਥ ਹਰਡ, ਜੋ ਦੰਦ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਟਰੋਂਗ ਐਂਡ ਬੋਨੀ ਸਟਰਕਚਰ ਫਿਕਸ ਫਰਮਲੀ ਇਨ ਦਾ ਅਪਰ ਐਂਡ ਲੋਅਰ ਜਾਜ਼, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਜਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਅਰ ਜਾਜ਼, ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇਲੇ ਦੰਦ, ਉੱਪਰਲੇ ਜਬਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰਲੇ ਦੰਦ। ਅਵਰ ਟੀਥ ਗਰੋਥ ਆਊਟ ਆਫ ਅਵਰ ਸੌਫਟ ਪਿੰਕ ਜਮਸ ਹੁੰਦੇ ਜਬਾੜੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਾੜਿਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗਮਸ ਹੋਲਡ ਅਵਰ ਟੀਥ ਔਨ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਟੀਥ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ। ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਬਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੀਨ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦ ਪ੍ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਟੀਥ ਸੀਨ ਅਬਵ ਦੀ ਗਮਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਕਰਾਊਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਊਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟੂਥ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਗਮਸ, ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਂਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੂਟ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੰਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਰੋਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਦੰਦ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਬਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਟੂਥ ਹੈਜ਼ ਆਊਟਰ ਵਾਈਟ ਕਵਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨੀਮਲ। ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਚਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹਾਰਡੈਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਰਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੀ, ਧਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਲੀ। ਦ ਨੈਕਸਟ ਲੇਅਰ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਟੂਥ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਿਟਾਈਨ। ਦੰਦ ਦੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਪਰਲੀ ਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਪਰਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਰਿਟਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਦੰਦ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਈਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਟੂਥ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪਲਪ। ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਲਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਦ ਪਲਪ ਇਜ਼ ਸੌਫਟ ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਬਲੱਡਡ ਵੈਸਲਸ ਐਂਡ ਨਰਵਸ ਇਨ ਇਟ। ਜੋ ਪਲਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਥੀਸ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਫੂਡ ਅਵਰ ਟੀਥ। ਇਹ ਜੋ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ। ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਟੀਥ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹਨ। ਵੈਨ ਵੀ ਲੁੱਕ ਐਟ ਆਵਰ ਟੀਥ ਇਨ ਦੀ ਮਿਰਰ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸੀ ਦੈਟ ਦੇਅਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪਸ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ਸ। ਅਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ੇਪਸ ਐਂਡ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਅਰ ਆਰ ਦੀ 4 ਕਾਈਂਡਸ ਆਫ ਟੀਥ। ਦੰਦ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਨਸੀਜ਼ਰ, ਥੀਸ ਆਰ 4 ਫਰੰਟ ਟੀਥ ਇਨ ਈਚ ਜਾਅ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 4 ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ਲੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ 4 ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੀਜ਼ਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇ ਹੈਵ ਸ਼ਾਰਪ ਸਟ੍ਰੇਟ ਐਡਜ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਦੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਕੱਟ ਐਂਡ ਬਾਈਟ ਫੂਡ। ਇਹ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕਟਿੰਗ ਫੂਡ ਕਾਲਡ ਕਟਿੰਗ ਫੂਡ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਵੀ ਜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤੂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਨਿਸ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੈਨੇਨਿਸ, ਦੇਅਰ ਆਰ 2 ਕੈਨਨਸ ਇਨ ਈਚ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? 2 ਕੈਨਨਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ, ਹਰੇਕ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੈਨਨਸ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਕੈਨਨਸ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਅਤੇ 2 ਕੈਨਨਸ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਔਨ ਦੀ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਆਫ ਦ ਇਨਕਿਜ਼ਰਸ।
देयर हैल्प शार्प पॉइंटड लाइक अ फोक, कहते तिखे कंडे की तरह होंगे है, कहते इदा होंगे है, ये जबाड़े दे चंगी तरह फिट की होंगे है, तो कहते एक तिखे कंडे की तरह होंगे है। दे हैल्प इन टीयरिंग फूड, टीयरिंग द मीनस कि किसी चीज़ को चीरना, कहते भोजन चीरने में मदद करते हैं। फॉर दिस रीजन, इस रीजन करके दे आर आल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ, इसे करके इन्होंने चीरन वाले दंद भी कहा जाता है। थर्ड वन इज़ प्रैमोल्स, प्रैमोल्स तुसीं देख रहे होंगे, दी आर 4 प्रैमल्स इन ईच आ, कहते ये अगे 4 प्रैमल्स पाए जाते हैं, कहते हरेक जबाड़े के एक एक प्रैमल्स पाया जाता है। दे आर नैक्सट टू दी कैनिस, ये कैनिस तो अगले दंद होंगे है। दी आर ब्रॉड एंड फ्लैट दंद, ये कहते चौड़े तो फ्लैट मीनस कि व्यापक, ब्रॉड मीनस चौड़े, कहते चौड़े तो व्यापक दंद होंगे है। दिस टीथ हैल्प अस इन क्रैकिंग फूड, क्रैकिंग भी होंगे किसी चीज़ को चीरना, चीरफाड़ करनी, कहते ये दंद भी भोजन चीरफाड़ करने के मदद करते हैं। दे आर आल्सो क्रैकिंग टीथ, इन्हों क्रैकिंग टीथ कहा जाता। लास्ट वन इज़ मॉरल्स, देयर आर द 6 मॉरल्स इन ईच जा, कहते हरेक एक एक जबाड़े के कहते अगे की पाए जाते 6 मॉरल्स पाए जाते हैं। दे आर नैक्सट टू प्रैमल्स, ये प्रैमल्स तो अगले दंद होंगे है। दे आर ब्रॉडर एंड प्रैमल्स, ये बहुत ही ज़्यादा चौड़े होंगे है। दे हैल्प अस इन ग्रीडिंग द फूड, ग्रीडिंग होंगे जी पीसना किसी चीज़ को, ये भोजन पीसन दे विच बिल्कुल उसनों गाली बनाने विच की करते हैं जी, मदद करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड ग्रीडिंग टीथ, इन्हों ग्रीडिंग टीथ कहा जाता। टूथ डीके नैक्सट इज़ वैन वी ईट स्मॉल बाइट ऑफ फूड गैट स्टक बिटवीन अवर टीथ, जो कहते असी छोटी छोटी बाइट के नाल भोजन स्टक करते हैं, दंदां दे विचाले लैंदे आ। सम टाइम्स, कई बार, दीज स्मॉल बाइट्स ऑफ द फूड आर नॉट रिमूवड वैन वी डोंट ब्रश अवर टीथ प्रॉपरली, कहते कई बार की होंगे जो असी लगातार अपने दंदां नूं ब्रश नहीं करते, दैट कवर्ड विद दैन स्टिक लेयर ऑफ जर्मस, वो कीटाणुओं के नाल कहते भर जाते हैं। दिस स्टिक्स लेयर ऑफ जर्मस इज कॉल्ड प्लक, इन्हों प्लक कहा जाता है। द प्लक रिएक्ट विद सुगर प्रेजेंट द फूड प्रोड्यूस ऑफ एसिड, तो कहते ये जो प्लक है हौली हौली दंदां दे विच एसिड पैदा कर दिंदा। द एसिड इफेक्ट्स द टूथ एनिमल एंड स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग इट, हौली हौली साडे दंद जो बर्बाद होने शुरू हो जाते हैं, तो इसनूं की कहता टूथ डिके किया जाता है। इट कॉज होल एंड कैविटीज़ ऑफ द एनिमल दे विच कहते हौली हौली की हो जाता जी, दंदां दे विच शराक पैदा हो जाते हैं, कैविटीज़ हो जाती, कैविटीज़ मीन कीड़ा लग जाता दंदां नूं, दंदां दे विच शराक पैदा हो जाते हैं। एज द रिजल्ट नर्वस ऑफ द ब्लड, द नर्वस एंड द ब्लड वैसल्स इन द पल्प गैट एक्सपोज्ड, जो साड़ियाँ नाड़ियाँ होंदियां खून दियां भरियां उन्हां दे विचों मसूड़ियां दे विच खून भरना शुरू हो जाता है। वैन एनी कोल्ड और हॉट थिंग कम्स इन द कंटैक्ट विद दीज एक्सपोज्ड नर्वस, कहते जो नाड़ियां दे विच ठंडी जां तत्ती चीज़ लगती है, वैन वी फील पेन टू थैक, तो असीं दंदां दे विच दर्द महसूस करते हैं। जो कहते साडे दंदां दे विच ये वाली प्रॉब्लम आ जाती है, फिर की हुंदा जी, कहते जो साडे दंदां नूं कोई ठंडी जां तत्ती चीज़ लगती है, असीं इदां दा पेन महसूस करते हैं, उदों साडियां जो दंदां दियां अंदरलियां नाड़ियां हुंदियां उन्हां दे विच एसिड बन चुका हुंदा है, वो मसूड़ियां दे राही वो जो खून है वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। थस टूथ डिकेस कॉसेस द फॉलोइंग, कहते इस तरह फिर की अगे कारण होंगे है, जो कहते दंदां दे विचों खून निकलना शुरू हो जाए, फिर कहते अगे की प्रॉब्लम्स होंदियां। टूथैक, दंदां दे विच दर्द हुंदा है। फाउल स्मैल फ्रॉम द माउथ, मूँह दे विचों गंदी बदबू आउंदी है। स्टोमच डिसऑर्डर्स, पेट दीयां बीमारियां हुंदियां। होल्स और कैविटीज़ इन द टीथ, दंदां दे विच शराक पैदा हुंदी है ते कीड़ा लग जाता है। लूज ऑफ द टीथ, दंद हिलने शुरू हो जाते, ढिले हो जाते हैं। केयर ऑफ द टीथ, दंदां की देखभाल किवें करनी चाहिए है। टीथ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, जो दंद है साडी बॉडी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर टीथ प्रिवेंट टूथ डिके, सानू भोजन करन तो बाद फिर जो अपनी दंदां की देखभाल करनी चाहिए है। प्रिवेंट टूथ डिके, सानू दंदां नूं की करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, बचाना चाहिए, उन्हें केयर करनी चाहिए है। सब तो पहला असीं की करांगे, वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट ट्वाइस अ डे, सानू घट्टो घट्ट दिन दे विच 2 बार ब्रश करना चाहिए। इन दी मॉर्निंग एट नाइट बिफोर गोइंग टू बैड, सुबह और शाम नूं बैड ते जाण तो पहला सानू ब्रश करना चाहिए है। वी शुड ब्रश अवर टीथ बाय फॉलोइंग द करैक्ट मैथड एज आ शोन बिलो, कहते जिमें कि नीचे मैथड दिता गया उसके अकॉर्डिंग सानू ब्रश करना चाहिए। सब तो पहला सानू उपरली साइड आउटर साइड करना चाहिए, फिर उस दंद के इनर साइड विच करना चाहिए, फिर नीचे आके आउटर साइड करना चाहिए, फिर उसकी
इनर साइड करना चाहिए। फिर सरफेस ऑफ द प्रैमल्स एंड मॉरल्स, जो प्रैमल्स ते मॉरल्स आ अगले जबाड़ियां दे विच फसे हुए जो दंद आ उन्हां ते ब्रश करना चाहिए है। थर्ड वन इज़ वी शुड ईट रॉ वैजीटेबल्स एंड फ्रूट्स, सानू वैजीटेबल ते फ्रूट्स खाने चाहिए लाइक एप्पल्स कैरट एंड रैडिश, जिमें कि गाजर मूली ते सेब इदां दे फल फ्रूट सब्जियां खानियां चाहिए। दे मेक अवर टीथ एंड गम्स स्ट्रोंग, ये साडे दंदां नूं ते मसूड़ियां नूं मजबूत करदे आ। वी शुड ड्रिंक मिल्क, इट गिव्स अ कैल्शियम, सानू दुध पीना चाहिए जो कि सानू कैल्शियम दिंदा है। वी शुड अवॉइड स्वीट एंड चॉकलेट्स, दे स्पॉइल्ड अवर टीथ, कहते सानू किहदे तो बचना चाहिए जी, मिठाइयां तो ते चॉकलेट तो बचना चाहिए जी। वी शुड विजिट अ डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ, सानू दंदां दे डॉक्टर को डेंटिस्ट को 6 मंथ तो बाद जाना चाहिए है। हर 6 महीने तो बाद सानू दंदां चैकअप करवाना जरूरी है। टीथ दैट आर नॉट कीप्ड क्लीन गेट कवर्ड विद अ येलो सबसटेंस कॉल्ड टार्टर, कहते जो ਜਿਹੜੇ दंद कहते येलो सबसटेंस के नाल कवर्ड हो जाते हैं, जिन्होंने साफ प्रॉपरली नहीं किया जाता, जो पीला जा उपर कवर आ जाता उसनूं टार्टर कहा जाता, जो असी पंजाबी ठेठ पंजाबी दे विच जिसनूं उसनूं करेड़ा भी कह दिंदे हाँ, जो पीले जे कलर का हुंदा उसनूं करेड़ा कहते, इंग्लिश दे विच उसनूं टार्टर कहते हैं। कहते वो टार्टर आ जो फुली उसनूं कवर कर लैंदा। दिस इज़ रिमूवड बाय अ डेंटिस्ट, जिहड़ा कि डेंटिस्ट के द्वारा ही रिमूव किया जाता है। We must floss our teeth every day. A dental floss is a piece of string that is moved back and the front through the space between our teeth, कहते जो सानू साडे दंद आ उन्होंने एवरी डे सानू फ्लूस करना चाहिए। डेंटल भी है जो वो भी साडे जो टीथ आ उन्होंने की करता जी, फ्लूस करता है। फ्लूसिंग रिमूव्स द फ्लड फूड दैट कैंट बी रिमूवड बाय ब्रशिंग, कहता जेकर असी फ्लूसिंग करांगे मीनस एक थ्रैड दे नाल उस दे विच थ्रैड दे नाल दंदां दे आर पार लंघावांगे, दंदां दे विच थ्रैड नाल साफ करांगे, जो कंकर जो बाइट छोटियां छोटियां फूड ब्रश नहीं साफ कर सकता उन्होंने बाई थ्रैड असी साफ कर सकते हाँ। अवर टंग कैन जो डिफरेंटेट बिटवीन अ ग्लास ऑफ अ पेन वाटर एंड ग्लास ऑफ अ साल्ट बाय जस्ट लुकिंग ऑफ दैम और स्मैलिंग दैम, कहते कि तुसी कर सकते हो तुसी एक गिलास दे विच सॉल्ट वाटर लेना एक गिलास दे विच प्लेन वाटर लेना, साफ पानी लेना और बाय स्मैलिंग दैम कि तुसी उदों दे वाटर में एवें करके फिर उसकी स्मैलिंग कर सकते हो। यू नो दैट दिस इज़ नॉट पॉसीबल, कहते संभव नहीं तुसी उसनूं कर सको, मीनस उहदे विच साल्ट वाटर दे विच कोई भी खास डिफरेंट तुहानूं एक टाइम देखने लिए नहीं लगेगा। द ओनली वे ऑफ द डिफरेंटेड इज़ बाय टेस्टिंग टू सोल्यूशनस, कहते तुसी एक गिलास दे विच साफ पानी लिया, एक गिलास दे विच नमकीन पानी लिया, जेकर तुसी इसकी स्मैल लवो तो तुहानूं स्मैल दे नाल भी खास पता नहीं लगेगा कि किहड़ा वाटर प्लेन है तो किहड़ा वाटर सॉल्टी है। विदाउट टेस्टिंग के द्वारा तुहानूं स्मैल नहीं पता चलेगी, सिर्फ टेस्टिंग दे नाल तुसी उस चीज़ नूं सैटअप कर सकते हो। द टंग इज़ देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ टेस्ट, इसे करके कहते टंग ही है जो मेन ऑर्गन है टेस्ट करने लिए। यू ऑलरेडी नो दैट सरफेस ऑफ द टंग हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड्स, तुहानूं पता ही कि टंग दी बहुत सारे टेस्ट बर्ड्स हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स, इसके 4 टेस्ट बर्ड्स हैं, स्वीट सॉर बिटर एंड सॉल्टी, मिठा खट्टा कौड़ा ते नमकीन। दीज हैल्प अस टू टेस्ट द फूड, ये जो टेस्ट बर्ड्स आ सानू हैल्प करते काहदे च जी फूड टेस्ट करने विच। ट्राई टू होल्ड योर टंग एंड स्पीक, तुसी अपनी जीभ नूं होल्ड करो तो बोलने की कोशिश करो। यू फाइंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तुहानूं पता चल जाएगा कि इदां बोलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। स्टैंड इन द फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक, शीशे के मूहरे खलोवो, मिरर के अगे खलोवो तो तुसी जीभ नूं फोल्ड करके बोलने की कोशिश करो। यू सी योर टंग रोल वैन इज़ यू स्पीक, तुहानूं पता चल जाएगा कि जो तुसी बोलते हो तुहाडी टंग का बहुत वड्डा रोल हुंदा। दिस रोलिंग एक्शनस ऑफ द टंग हैल्पस अस टू प्रोनाउंस द वर्ड करैक्टली, कहते ये जो जीभ है जो तुसी बोल रहे हो तुहाडे वर्ड्स नूं करैक्टली बोलने दे विच मदद करती है। द टंग देयरफॉर प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन स्पीकिंग, जो टंग हैगी आ वो इंपॉर्टेंट पार्ट है कहदा जी स्पीकिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके स्टूडेंट, lesson 7 is fully completed and now we will do back exercise. Correct the answers. First one is the last 4 teeth that come out between the age of 20 and 30 are called, जो लास्ट वाले दंद हैगे जो 20 to 30 ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਦੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? विजडम teeth. Right answer is wisdom teeth. The center part of each tooth is known as,
जो सेंटर पार्ट हुंदा है टीथ का उन्होंने की कहा जाता जी, किहदे नाम नाल जानिया जाता है जी, पलप। थर्ड वन इज़ मॉल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, मॉल्स आ जो उन्होंने किहड़े दंद कहा जाता है जी, ग्रैंडिंग किहड़े दंद कहा जाता है जी, ग्रैंडिंग मीनस वो दंदां नूं पीसन का काम करते हैं। अनक्लीनर टीथ गेट कवर्ड विद अ येलो सबसटेंस इज कॉल्ड, कहते जिहड़े दंद साफ नहीं किए जाते उन्होंने दे उत्ते पीले कलर की एक चादर आ जाती है, पीला कलर उन्होंने कवर कर लैंदा, उन्होंने की कहा जाता जी, टार्टर। सर्कल दी ऑड वन, एनिमल्स, डिटाइन, पलप, जो ये तीनों कैटागरी। फोर्थ वन इज टंग, जो फर्स्ट तीनों है एनिमल, डिटाइन, पलप, ये तीनों दंदां दे नाल रिलेटेड आ। फोर्थ डिफरेंट है जी टंग, ऑबवियसली जो इधर राइट ऑप्शन आ वो की है जी टंग। सैकेंड इज आइसक्रीम, कैरेट, रेडिश, एप्पल। कैरेट, रेडिश दोनों वैजीटेबल, एप्पल फ्रूट है जी। तो जो आइसक्रीम आ इन्हां तिन्हां दे नाल की है जी डिफरेंट है, तो राइट ऑप्शन इज आइसक्रीम। फिल इन द ब्लैंक, द सेट ऑफ टीथ इज 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज़ कॉल्ड डैश, जो कहते 3 साल की उम्र के जोड़े दंद होंगे आ, मीनस होंगे आ 3 साल जो बच्चा होंगे वो जो दंद होंगे आ उन्होंने किहड़े दंद कहा जाता है, मिल्क टीथ, दुध दंदियाँ। डैश होल्ड अवर टीथ, किन्ना ने साडे दंदां नूं पकड़िया होया, गम्स मीन जबाड़ियां ने। डैश इज़ द सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट, सेंस ऑर्गन ऑफ टेस्ट का जो अंग हैगा, सेंस ऑर्गन हैगा जिहड़ा टेस्ट करन दा वो किहड़ा जी, टंग, जीभ के द्वारा असीं टेस्ट नूं पता कर सकते हाँ। डैश रिमूव्स द फ्लड दैट कांट बी रिमूवड बाय ब्रशिंग, कहते जो जो दंदां दे विच बाइट्स या फिर कुछ होर फसिया हुंदा जो ब्रश के द्वारा नहीं रिमूव किया जाता, तो उन्होंने किहदे नाल रिमूव किया जाता जी, फ्लॉसिंग दे नाल, फ्लॉसिंग दे नाल रिमूव किया जाता। नेम द फ्लोइंग टीथ, फर्स्ट इज इंसिजर, सेकंड इज कैनाइन, थर्ड वन इज प्रेमोलर, फोर्थ इज मोलर्स, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट वन इज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट इज द अदर नेम मिल्क टीथ, मिल्क टीथ का दूसरा नाम की है, आंसर इज टेम्परेरी टीथ। वाई शुड वी अवॉइड चॉकलेट एंड स्वीट्स, सानू मिठाइयाँ तो चॉकलेट तो क्यों बचना चाहिए है, बिकॉज दे स्पॉल अवर टीथ, क्योंकि साडे दंदां नूं नष्ट कर दिंदे आ, बिकॉज दे स्पॉल अवर टीथ, साडे दंदां नूं नष्ट कर दिंदे आ। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन इज व्हाट इज टार्टर, हाउ कैन इट बी रिमूवड, कहते करेड़ा की है तो इसनूं किद्दां रिमूव किया जा सकता, हाउ कैन इट बी रिमूवड, इसनूं किद्दां रिमूव किया जा सकता। टीथ दैट कवर्ड विद अ येलो सबसटेंस, वो वाले दंद जो येलो सबसटेंस के नाल कवर किए जाते हैं, और कॉल्ड टार्टर, उन्होंने टार्टर कहा जाता है। दिस इज़ रिमूवड बाय अ डेंटिस्ट, ये डेंटिस्ट द्वारा ही रिमूव किया जाता। वट इज़ डेंटल फ्लूजिंग, डेंटल फ्लूज की है, अ डेंटल फ्लूज इज़ अ पीस स्ट्रिंग दैट इज़ मूवड बैक एंड द फ्रंट थ्रू द स्पेसिस बिटवीन अवर टीथ, कहते जो डेंटल फ्लूज है ये कहते साढ़े दंदां दे विच स्पेस बनाने की मदद करता है। डेंटल फ्लूसिंग के द्वारा असी दंदां नूं साफ कर सकते हैं जो ब्रश के द्वारा साफ नहीं होंगे। थर्ड वन इज़ क्लीन अवर एंड वैल्थी टीथ मेक अवर स्माइल ब्यूटीफुल, कहते जो साफ तो वधिया दंद होंगे आ वो दंद साडी चंगी स्माइल बनाते हैं। डू यू स्माइल एवरीवन, वाई नॉट, कहते कि तुसी हर एक स्माइल करना पसंद करते हो, जेकर करते हो तो क्यों, जेकर नहीं करते तो फिर क्यों नहीं करते। यस क्लीन एंड वेल्थी टीथ मेक अवर स्माइल ब्यूटीफुल, ऑफ कोर्स वी स्माइल एट एवरीवन, असीं हर एक स्माइल करते हैं, बिकॉज स्माइल अवे फ्रॉम स्ट्रैस, जो स्माइल है सानू स्ट्रैस तो दूर लै जाती है। इट इज़ सिंबल ऑफ हैप्पीनैस, तो ये खुशियां का एक चिन्ह है। क्यों करना पसंद करते हैं जी, बिकॉज स्माइल अवे फ्रॉम स्ट्रैस, सानू स्ट्रैस तो दूर लै जाती है। इट इज़ सिंबल ऑफ हैप्पीनैस, तो ये हैप्पीनैस का चिन्ह है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इज व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इंसिजर्स, कैनिनस, प्रीमोलर्स, मोलर्स, इन्होंने चारों का की फंक्शन है, की कार्य है। आंसर इज इंसीजर का की फंक्शन है जी, की काम करता है। दीज आर 4 फ्रंट टीथ, ये पहले 4 दंद होंगे है, इन ईच हर एक जवाड़े के एक दंद होंगे। देयर फंक्शन इज कट एंड बाइट फूड, ये भोजन कट्टन ते चबाउण ते चब्बन दे विच मदद करती है। कैनिस कहते ये भी हर एक जवाड़े के होंगे। दी हेल्प इन टीयरिंग फूड, ये भोजन चीरन के मदद करते हैं। प्रीमोलर्स कहते ये नैक्सट 4 प्रीमोलर्स होंगे, हर एक जवाड़े के एक होंगे। दिस टीथ हेल्प इन क्रैकिंग फूड, ये भी चीरने में मदद करते हैं। मोलर्स
देयर 6 मोलर्स इन ईच जा। कहते अगे की हुंदा जी, ये शेप हुंदी है हैल्प अस ग्रेडिंग फूड, ये भोजन नूं ग्रेडिंग करने विच पीसन दे विच मदद करदे आ। वट आर द हार्मफुल इफैक्ट्स ऑफ द टूथ डिके। नैक्सट क्वेश्चन इज वट आर द हार्मफुल इफैक्ट्स ऑफ द टूथ डिके। टूथ डिके दे हार्मफुल इफैक्ट की है, माड़े प्रभाव की है। टूथ डिके क्रिएट होल्स और कैविटीज इन दी एनिमल। जो टूथ डिके है वो एनीमल दे विच होल्स ते कैविटीज नूं पैदा करदा है। एज द रिजल्ट द नर्वस एंड द ब्लड वैसल्स इन द पल्प गैट एक्सपोजड। तो कहते जो नाड़ियां दे विच ब्लड भरिया जाता, जो नाड़ियां दे विच ब्लड हुंदा वो गैट एक्सपोजड ते बाहरों निकलना शुरू हो जाता साडे दंदां दे विचों, दंदां दे सूड़ियां दे राहीं खून रसना जो शुरू हो जाता। एक किहदा हार्मफुल इफैक्ट है जी टूथ डिके दा। ये उदों हुंदा जी जदों असीं दंदां नूं प्रॉपरली क्लीन नहीं करते। ओके स्टूडेंट, लैसन 7 इज़ फुली कंप्लीटेड विद एन बैक एक्सरसाइज। स्टूडेंट तुसी ये वाला चैप्टर जो चंगी तरह रीड आउट करना, जो बैक एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर्स नूं तुसी नोटबुक ते राइट करने हैं। पार्ट डी नूं तुसी नोटबुक दे उत्ते ड्रॉ भी करना है एंड इन्हां दी नेम भी लिखनी है। पार्ट ई एफ जी इन्हां नूं तुसी नोटबुक ते करना। ए बी सी इन्हां नूं तुसी बुक दे उत्ते करना। लिसन अगेन, लिसन केयरफुली। ए बी सी इस नूं तुसी बुक दे उत्ते करना। डी तुसी नोटबुक ते ड्रा करना। ई एफ जी नोटबुक ते उत्ते करनी है, साफ हैंड राइटिंग दे विच करनी है। स्टूडेंट तो तुसी इहदे नाल लैसन नाल रिलेटेड पिक्स भी लगा सकदे हो, जिवें कि तुहानूं जिद्दां दा क्वेश्चन आउंदा तुसी उदां दी पिक भी लगा सकदे हो। जिद्दां कि मिल्क टीथ दुੱਧ दिंदियां, कोई छोटा बच्चा स्माइल कर रहा उदां दी पिक लगा सकदे हो। नैक्सट क्वेश्चन दे विच चॉकलेट ते स्वीट्स आईयां उन्हां दी पिक लगा सकदे हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स तुहानूं पिक लगानी कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, सेफ लाइफ।